السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ برقعے پر پابندی لگانے، شیو سینا کے مطالبے پر کارروائی کرنے الیکشن کمیشن سے مطالبہ، مودی کے جلسے میں نعرے، نتیش کمار خاموش، بی جے پی وضاحت کرے، بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ اپوزیشن قائدین بے بنیاد الزامات کے خلاف تک عزت مقدمات درج کرنے، کے ٹی آر کا انتباہ، پرچوں کی جانچ کا عمل مکمل ہونے تک اپوزیشن اور والدین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انٹرمیڈیٹ نتائج میں بے قاعدگیوں کے خلاف کانگریس تنظیموں کی 48 گھنٹوں کی بھوک ہڑتال، بی جے پی کا جمعرات کو تلنگانہ بند کا اعلان۔ دواخانہ عثمانیہ کی زبوں حالی پر مفقم جاہ کا افسوس، اطلاع دینے کے باوجود حکومت کا کوئی نمائندہ معائنے میں شامل نہیں۔ جلپلی تالاب کے قریب نامعلوم شخص کا بے دردی سے قتل، پولیس مصروف تحقیقات۔ اور ایک شخص نے 17 سالہ لڑکی کو حاملہ کر دیا، ناجائز تعلقات کا ثبوت مٹانے میٹرنیٹی ہاسپٹل کا مشتبہ رول۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بی جے پی کی حلیف جماعت شیو سینا کو کٹ پتلی سے تعبیر کیا اور ملک میں برقعے پر پابندی سے متعلق شیو سینا کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے انتخابی ضابطے اخلاق کی خلاف ورزی سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے اس بیان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ دارالسلام میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ شیو سینا کے ترجمان سامنا میں برقعے پر پابندی سے متعلق بیان ملک کے دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انتخابی ضابطے اخلاق کے نفاذ کے بعد اس طرح کا بیان ضابطے اخلاق کی خلاف ورزی کے علاوہ پیڈ نیوز کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے شیو سینا کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سے اتحاد کے بغیر انتخابات لڑنے، مودی کا ساتھ نہ دینے کا دعویٰ کرنے والی شیو سینا اپنی بقا کے لیے مودی کے گود میں بیٹھ گئی ہے۔ دیکھیے، شیو سینا کا سامنا کا جو اخبار ہے وہ جو ہے ہمیشہ ایک پوپٹ ماسٹر ہے، اور پوپٹ ماسٹر نے لکھا تھا کہ ہم اکیلے لڑیں گے، پوپٹ ماسٹر نے لکھا تھا کہ ہم مودی کو ہرائیں گے، تو پوپٹ نے کلاٹی مار کر مودی کے ساتھ چلے گئے۔ تو اب ہم ان پوپٹ ماسٹروں کو ان کو گیان دے رہے ہیں، ہم گیان دے رہے ہیں۔ گیان یہ دے رہے ہیں کہ ان کو جو ہے سپریم کورٹ کا پریویسی کا ججمنٹ پڑھنا چاہیے، پڑھتے نہیں ہیں نا یہ لوگ۔ ان کو 377 سپریم کورٹ نے نکال دیا، وہ پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ سمجھ میں آ گیا ان کو، تو ان کو معلوم ہوگا کہ چوائس، کیپٹل لیٹرز میں کہہ رہا ہوں شیو سینا کے لیے، CHOICE، چوائس اب ہمارے سمویدھان میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آپ جینز پہنے، آپ برقع پہنے، نقاب پہنے، گھونگھٹ پہنے، آپ کچھ نہ پہنے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ شیو سینا نے کلاٹی مار کر جو مودی کا ہاتھ پکڑ لیا، تو پولیٹیکلی ان کے پاس اب کچھ چھپانے کو ہے ہی نہیں، تو اسی لیے یہ بکواس کر رہے ہیں۔ تو یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی اجازت ہے۔ رہا سوال کہ دوسرے کنٹریز کا، مجھے دوسرے کنٹریز کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کا سمویدھان، ہندوستان کے سپریم کورٹ ججمنٹس وہ لا ہیں جو شیو سینا پوپٹ نہیں سمجھ سکتی ہے۔ دوسری بات، میں الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے اس آرٹیکل کو وہ امیڈیٹلی اس کا نوٹس لیں، اور یہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا وائلیشن ہے، MCC کا گریو وائلیشن ہے، اور یہ پورے ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم خواتین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف۔ تو الیکشن کمیشن کو فوراً اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ تھرڈلی، یہ پیڈ نیوز میں آتا ہے، یہ پیڈ نیوز میں آتا ہے، تو یہ تین چیزوں کا یہ گریو وائلیشن ہے۔
एक तो इनको समझ में नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन, इनको जैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इनको लगता है कि कोई इनके सामने कोई खतरनाक शेर आ चुका है। तो हम इनको समझा रहे हैं कि भैया चॉइस जो है ना वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, कोई भी किसी कोई भी कपड़ा पहन सकता है। ये वही लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि लेडीज जीन्स नहीं पहनना। आप हमारे मुल्क में हमारे लेडीज घूंघट ही पहनती है, वो भी निकाल देंगे क्या? अरे तुम समझो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान एक प्लूरल कंट्री है और आपका ये हिंदुत्व आप सब पे इम्पोज नहीं कर सकते। देखिए हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका ये जो अखबार का आर्टिकल है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर ब्लेटेंट वायलेशन है। ये पेड न्यूज़ में भी आता है ये, इसलिए कि जहां पर अभी कंट्री में कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के लिहाज से चॉइस एक फंडामेंटल राइट है, आप उसको किसी से छीन नहीं सकते। आप ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू भी है और ये वही लोग हैं जो कल तक हमारे बच्चियों को जीन्स पहनने पर मारपीट करते थे। अब क्या ये लोग डिसाइड करेंगे कौन क्या कपड़ा पहनेगा, कौन क्या कपड़ा नहीं पहनेगा? कल बोलेंगे नहीं अब आप जो है दाढ़ी चेहरे पे ठीक नहीं है, टोपी मत पहनिए। अरे ये कहाँ लेकर जाएंगे हिंदुस्तान? हाँ, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या पहनी हुई थी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित क्या पहने हुए थे, देवेंद्र उपाध्याय क्या पहने हुए थे, अजमेर ब्लास्ट में देवेंद्र गुप्ता क्या पहने हुए थे, वो क्या शेरवानी पहने हुए थे? बिहार में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंतखाबी जलसे में लगाए गए नारों पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की खामोशी पर सवाल उठाते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इन नारों को ना लगाने वालों पर मुल्क दुश्मन होने का लेबल लगाने वाली बीजेपी इस बात की वजाहत करे कि नीतीश कुमार ने ये नारा क्यों नहीं लगाया। बैरिस्टर अवैसी तवील इंतखाबी मुहिम के बाद चारशंबे को दारुस्सलाम पहुंचे। माहौल तो मोदी के खिलाफ है, माहौल तो बहुत खिलाफ है, इतना खिलाफ है कि बिहार में मोदी नारे लगा रहे थे जय जय के और नीतीश कुमार बोल रहे नहीं मैं नहीं बोलूँगा। नीतीश कुमार पे सन्नाटा तारी हो गया। अब आप लोगों से मेरी शिकायत ये है कि क्या आप नीतीश कुमार को एंटी नेशनल बोलेंगे? क्या बीजेपी के लोग बोलेंगे कि भारत में रहना है तो ये बोलना पड़ेगा? नीतीश को बोलिए ना, ओवैसी को तो रोज बोलते हैं, हमको तो आदत पड़ चुकी है, जब तक हम सुने हमको नींद भी नहीं आती। अब नीतीश कुमार मोदी के डाइस पर बैठे हैं, सब लोग पुकार रहे हैं जय जय और नीतीश जो है खामोश बैठे हैं। वो ये सोच रहे थे कि वो यही सोच रहे थे होंगे भाई क्या हो रहा है। तो नीतीश से पूछिए, अब ये माहौल है, माहौल खुद डाइस पे बता रहा है। देश का माहौल जो है वो नीतीश कुमार के सन्नाटे से खामोशी से बता रहा है। टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि अपोजिशन कायदीन इंटरमीडिएट नतायज पर मनमाने इल्जामात लगाएंगे तो हितक इज्जत का मुकदमा आयद किया जाएगा। टीआरएस भवन में मे डे के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में मजदूर तबके को मुबारकबाद पेश करने के बाद केटीआर ने कहा कि केसीआर से सियासी तौर पर मुकाबला करने के लिए अपोजिशन दूसरे मसाइल को उठा रहे हैं और वो दूसरे मसाइल को उठाएं। इन्होंने तुलबा और सरपरस्तों से जल्दबाजी का मुजाहरा ना करने की अपील की। इन्होंने कहा कि एक अहमक मंदिर के पास बैठकर कसम खाने के लिए कहे तो जाना जरूरी नहीं। इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में ये मामला है, अदालत फैसला करेगी कि कौन खाती है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन तुलबा के मुस्तकबिल को नजर में रखते हुए सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। पर्चों की दोबारा जांच का अमल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, तब तक सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। इंटरमीडिएट नताज में हुई बेकायदगियों के खिलाफ कांग्रेस की महाजी तंजीम NSUI और यूथ कांग्रेस के सदर जुमेरात से 48 घंटों की भूख हड़ताल का गांधी भवन में आगाज करेंगे। चारशंबे को NCUI के सदर बी वेंकट की सदारत में कारकुनों ने इंटरमीडिएट बोर्ड का घेराव किया और तुलबा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी के बाद एहतजाजी कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इंटरमीडिएट नतायज की बेकायदगियों के खिलाफ बीजेपी ने जुमेरात को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा कि इंटरमीडिएट मामले में
वज़ीर आला की तरफ से कोई वाज़ेह रद्द अमल सामने नहीं आया। इन्होंने कहा कि खुदकुशी के वाक़यात के लिए हुकूमत ही जिम्मेदार है, लेकिन हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट मामले में हुकूमत कोई वाज़ेह कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए बीजेपी ने तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। इन्होंने अपील की है कि इस बंद को कामयाब बनाएं। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने इत्तला दी है कि नताइज में बेकायदगियों पर तश्कील दी गई 3 रुकनी कमेटी की सिफारिश पर अमल करते हुए नताइज की दोबारा जांच एक और कंप्यूटर इंजीनियर के जरिए करवाने का फैसला लिया गया है। नए कमेटी के तकर्रुर करने की जिम्मेदारी TSTS को दी गई है। ग्लोबरीना कंपनी के नताइज की जांच के बाद, तकर्रुर करदा कमेटी की जांच के बाद पर्चों की दोबारा जांच के नताइज जारी किए जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर M शशिधर रेड्डी ने कहा है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार वोटिंग फीसद में इजाफे के मामले में अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में शाम 5 बजे के बाद 6% वोटिंग का इजाफा हुआ था। पार्लियामेंट में 10% मजमूई वोटिंग 10% कम होने के बावजूद सिर्फ 1% कमी आई है, जिससे कई शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि शाम 5 बजे के बाद दीगर हलकों में वोटिंग फीसद में इजाफा हुआ है, वहीं चेवल्ला हलके में वोटिंग फीसद में कमी आई। M शशिधर रेड्डी ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इन्होंने रायदही की मुकम्मल तफसीलात और वीडियो क्लिप्स फराहम करने का मुतालबा भी किया है। हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सुभाषन रेड्डी का चारशंबे के दिन इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर मिलते ही वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपना ताज़ियती पैगाम जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि उनकी आखिरी रसूमात को सरकारी एजाज़ात के साथ अदा किया जाए। वजीर आला ने उनकी क़यामगाह पहुंचकर उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। पुरसा देने वालों में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, रियासती काबीना वज़ीरा YSRCP के सदर जगन मोहन रेड्डी, हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी के अलावा आला सरकारी ओहदेदारों ने उनकी क़यामगाह पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। मुल्क की रियाया के मुफ्त इलाज के लिए अपने दादा मरहूम नवाब मीर उस्मान अली खान आसिफ जा साबे के तामीर करदा दवाखाना उस्मानिया जब मरहूम के पोते शहजादा वाला जा नवाब सैयद करामत अली खान मुफ़क्कम जा बहादुर पहुंचे तो अपने वक्त के इस अजीम दवाखाने की ज़बूहाली और हुकूमत की तसाहुली को देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सके। मुफ़क्कम जा बहादुर ने दवाखाने उस्मानिया का दौरा करने की इत्तला ज़िले कलेक्टर, दवाखाने इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिक़ा सरकारी हुक्काम को पेशगी दी थी। इस पेशगी इत्तला के बावजूद कोई सरकारी कारिंदा उनके लिए वहां मौजूद नहीं था। कुछ देर के लिए दवाखाने के सुप्रिटेंडेंट आए और रवाना हो गए। अपने आबा व अजदाद के तामीर करदा इस दवाखाने की हालत पर मुफ़क्कम जा बहादुर ने अफसोस का इजहार किया। उनकी आमद पर खानवादा आसिफिया की दवाखाने में लगाई गई तस्वीर की तक सफाई नहीं की गई। हर तरफ गंदगी, इमारत की खस्ताहाली पर इन्होंने कहा कि इस दवाखाने को असरी बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल के दौरान इस पर पेंट तक नहीं करवाया गया। शहर को इस्तांबुल, सिंगापुर, लंदन वगैरह बनाने के बुलंदबांग दावे किए गए। इस दवाखाने को बेहतर बनाने इन्होंने सरकारी हुक्काम से राबते की कोशिश की, लेकिन कोई राबते के लिए आगे नहीं आया। प्रिंस मुफ़क्कम जा इंतहाई दुख और अफसोस के साथ दवाखाने से वापस हुए। दवाखाने उस्मानिया, जहां हजारों अफराद को मुफ्त इलाज की सहूलतें फराहम की जाती हैं, इसकी इमारत बोसीदा हो चुकी है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तो आसिफ जा साबे की रफाही कामों का अक्सर और बेशतर तस्करा जरूर करते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत इस अजीम हुक्मरान की औलाद के इस अवामी दर्द पर खामोश बैठे हुई है। हिरात अफगानिस्तान में वाक़े सिलसिला चिश्तिया के आलमी खानक़ाह हज़रत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मखदूम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के दादा पीर हैं, से ताल्लुक़ रखने वाले सज्जादा नशीन मौलाना सैयद ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती ने
चारशंबे को मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। इन्होंने सदर मजलिस की खिदमात की सताइश की और इनकी सरकरोई के लिए दुआएं की। मौलाना सैयद ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती बरसगीर के सूफिया इकराम पर इल्मी रिसर्च के लिए तहकीकाती और मुतालियाती दौरे पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सज्जादनशीन दरगाह चश्त शरीफ अफगानिस्तान से जहाज से सिलसिले चिश्तिया शुरू हुआ और ख्वाजा गरीब नवाज के ख़ानदान से मैं यहाँ पे जनाब हज़रत उवैसी साहब में हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम के तसव्वुफ़ की और एक फ़ख्र है और मिलत इस्लामी के बहुत फ़ख्र है और हज़रत की मैं यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में जो खदमत किया है यह मैं बहुत मुतासिर हूँ। मुल्क के साफ सुथरे शहरों के रैंक में हैदराबाद भी शामिल है। इसे स्वच्छ भारत का भी एजाज हासिल हो चुका है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर को साफ सुथरा रखने स्वच्छ हैदराबाद की मुहिम भी शुरू की। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दाना किशोर शहर को मिसाली बनाने का दावा करते हैं, लेकिन जनूबी शहर के बलदी डिवीजन तालाब चिंचलम, तालाब कट्टा, नशेमन नगर और इसके आसपास के इलाकों में कचरे के अंबार को देखकर मिसाली शहर के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ रोजाना सड़कों पर जारूबकशी का नज्म नहीं, हालांकि बलदी हुक्काम के मुताबिक 36 जारूबकश मामूर हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 ही योमिया काम करते हैं। हफ्ते में एक मरतबा सड़कों पर झाड़ू लगाई जाती है। इस शाहरा पर कई फंक्शन हॉल्स, स्कूल्स, मसाजिद, दवाखाने और बेशुमार दुकानें हैं। योमिया जारूबकशी के लिए मुतल्लिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने इल्जाम लगाया है कि इस इलाके में सफाई और जारूबकशी के लिए कमिश्नर GHMC दाना किशोर से 3 मरतबा नुमाइंदगी की गई। जोनल कमिश्नर को कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन सिवाय तहक़ीनात के अमल कुछ नहीं किया गया। एक तरफ रोजाना सफाई ना होने से कचरे के अंबार देखे जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ कूड़ेदानों से कचरे की अदम नकासी हफ्तों नहीं हो पाती। कई मरतबा नुमाइंदगी पर हफ्ते में एक मरतबा इन कूड़ेदानों से कचरे की नकासी की जाती है। इन्होंने इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इस इलाके में बड़े पैमाने पर वबाई अमराज फूट पड़ सकते हैं और इसके लिए GHMC जिम्मेदार होगी। पहाड़ी शरीफ पुलिस हदूद में वाक़े जलपल्ली तालाब के करीब एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल किया गया। तफसीलात के मुताबिक नामालूम शख्स, जिसकी उम्र करीब 35 साल बताई जाती है, इसका नामालूम अफराद ने तेज धारी वाले हथियार से हमला करते हुए उसका कत्ल किया। वाक़े की इत्तला पर DSP LB नगर पुलिस सनप्रीत सिंह और ACP गांधी नारायण ने क्लोज टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बहादुरपुरा में व्हाइटनर इस्तेमाल करने वाले 2 ग्रुपों में पेश आए झगड़े में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक चंद दिन पहले इन दोनों ग्रुपों में झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इन दोनों में मुसालहत हो गई। लेकिन चारशंबे के दिन दोनों ग्रुपों में फिर तसादुम हुआ, जिसमें गौस, शमशीर और निजाम शदीद जख्मी हुए। इन दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर चाकुओं से हमला किया। आए दिन जू पार्क की सड़क पर व्हाइटनर इस्तेमाल करने वाले अफराद या तो आपस में झगड़ते हैं या फिर राहगीरों को तंग करते हैं। बहादुरपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज करके जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया है। चादरघाट पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक शादीशुदा शख्स ने एक 17 साल लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते हुए इसे हामिला कर दिया और 3 माह के हमल को सरकारी जचगी खाना पेटला बुरुज में गिरा दिया ताकि इसके गुनाह का सबूत ना रहे। इस पूरे वाक़े में गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल का रोल मुश्तबा माना जा रहा है। रेस कोर्स मलकपेट के करीब वाक़े पापिया बस्ती के साकिन 25 साल शंकर, जो रेस क्लब का मुलाजिम है, शादीशुदा है और 2 लड़कियों का बाप है। इसने इसके पड़ोस में रहने वाली 17 साल लड़की, जिसकी हकीकी माँ कुछ अरसा कब्ल इंतकाल कर गई थी, से ताल्लुकात कायम किए। इन ताल्लुकात के सबब लड़की हामिला हुई
حمل کو گرانے کے لیے اس شخص نے 13 اپریل کو اسے گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل میں شریک کروایا۔ ہاسپٹل کی کیس شیٹ میں یہ واضح تحریر ہے کہ یہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے اور حمل سے ہے، لیکن ہاسپٹل کے ذمہ داروں نے اس کی پولیس کو اطلاع نہیں دی۔ حمل کو گرائے جانے کے بعد 20 اپریل کو اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ دواخانے سے گھر واپس ہونے کے چند دن بعد اس لڑکی کو اپنی اس حالت پر پشیمانی ہونے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کر خودکشی کی کوشش بھی کی۔ تب اس لڑکی کی سونتیلی ماں نے چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا ہے۔ ادھر ملکاجگیری پولیس حدود میں ساتھیوں کے ہاتھوں ایک شخص کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 28 سالہ جوشوا سیمیول جو وجیا پوری کالونی کا ساکن ہے، اس کا مولالی ریلوے اسٹیشن کے قریب ساتھیوں نے شراب پلا کر قتل کر ڈالا۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ ضلع سنگاریڈی کے رام چندرا پور پولیس اسٹیشن میں کانسٹیبل کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والی ایک خاتون کا قتل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں مقتول خاتون کانسٹیبل منداکنی کے والد نے 30 اپریل کو پولیس میں ایک شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس کی تحقیقات پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ منداکنی کے ہتیندر پولیس اسٹیشن میں کام کرنے والے کانسٹیبل پرکاش کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ پولیس نے ملزم پرکاش کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے منداکنی کا قتل کر کے موضوع کوناپور میں لاش کو پیٹرول ڈال کر جلا ڈالا۔ ملزم نے پولیس کو بتایا کہ منداکنی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہی قتل کی اصل وجہ ہے۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں۔ ضلع منچریال میں بلمپلی فلائی اوور کے پاس مقامی عوام نے لوری ڈرائیور کو زدوکوب کر کے ہلاک کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق لوری ڈرائیور نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی۔ لوری ڈرائیور نے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی جس میں موٹر سائیکل لاری کی زد میں آ گئی۔ اس حادثے میں موٹر سائیکل سوار کرشماتی طور پر بچ گیا، لیکن مقامی افراد نے تعاقب کر کے لوری ڈرائیور رحیم کی بری طرح پٹائی کر دی، جس کی وجہ سے وہ برسر موقع ہلاک ہوا۔ لوری حیدرآباد سے بلمپلی جا رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ برقعے پر پابندی لگانے، شیوسینا کے مطالبے پر کارروائی کرنے الیکشن کمیشن سے مطالبہ، مودی کے جلسے میں نعرے، نتیش کمار خاموش، بی جے پی وضاحت کرے، بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ اپوزیشن قائدین بے بنیاد الزامات کے خلاف تحقیقی مقدمہ درج کرنے کے ٹی آر کا انتباہ، پرچوں کی جانچ کا عمل مکمل ہونے تک اپوزیشن اور والدین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انٹرمیڈیٹ نتائج میں بے قاعدگیوں کے خلاف کانگریس تنظیموں کی 48 گھنٹوں کی بھوک ہڑتال، بی جے پی کا جمعرات کو تلنگانہ بند کا اعلان۔ دواخانہ عثمانیہ کی زبوں حالی پر مفقم جہاں کا افسوس، اطلاع دینے کے باوجود حکومت کا کوئی نمائندہ معائنے میں شامل نہیں۔ جلپلی تالاب کے قریب نامعلوم شخص کا بے دردی سے قتل، پولیس مصروف تحقیقات۔ اور ایک شخص نے 17 سالہ لڑکی کو حاملہ کر دیا، ناجائز تعلقات کا ثبوت مٹانے میٹرنٹی ہاسپٹل کا مشتبہ رول۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔